friends, Jai Bholenath. The first half of the video will be exclusively for girls and ladies. It is about your menstrual cycle. I would like to give you some tips. I'm not an expert, but if my tips come in handy, my work is done. So, castor oil first of all. Apply castor oil. Apply castor oil on your navel, below the navel, and on the pelvic area. This will strengthen your weak blood capillaries, which will control the overflow problem and the pain problem. So this will help you with both the issues. Secondly, onion juice. It is a great remedy, cool in nature, and you have to apply it on your hair and you have to drink it when near your cycle or after your cycle. This will help you, strengthen you, and keep your body cool. Third, methi dana. So if your cycle is delayed because of some reason other than any contraceptive or pregnancy related issue, generally if it is late, you have to consume methi dana. Boil 1 spoon of methi dana in in 1 glass of water, and keep boiling it until the water remains half. So half a glass. You should have it warm for 2-3 days. Some other remedies, you can boil hing after breakfast in a glass of water, and you can have it. So these things should help you go through your menstrual cycle smoothly, and there is nothing to be ashamed of. There is nothing to be nothing to hide, and you should be proud of it. You're a woman, and you're the mother of all creation, the feminine energy. So be proud of it, and these are my tips for you. And the second half of the video will be both for men and women. I would like to give some tips on Vajroli and Amroli. So what are Vajroli and Amroli? These are very advanced yoga kriyas. So I'm just gonna give you a little bit of detail. थोड़ा सा आपको इसके बारे में जिज्ञासा आपके मन में उत्पन्न कर देते हैं, ताकि आप खुद रिसर्च करें, ढूंढें, और बिल्कुल हमें किसी काबिल गुरु के गाइडेंस में इसको आपको करना है. ये बहुत एडवांस क्रियास हैं, ऐसे आपको नहीं प्रैक्टिस करना. और तो वज्रोली इज़ फॉर women and amroli is for men. तो इसमें you have to contract your genitals so tight with exhale. कभी भी जो आपको बंद लगाना है, बंद जहाँ पे भी आप लगाते हैं, कभी इनहेल करके बंद मत लगाना. बलून की तरह कैपिलरीज और ब्लड सेल्स फट जाएंगे. अगर बलून को आप इन्फ्लेट करके अगर उसको दबा देंगे, दबाना इस बंद लगाना, तो फट जाता है. ऐसे हमारे अंदर बहुत वीकनेस आती है, बहुत नुकसान होता है. ये तांत्रिक क्रियाएं होती हैं. योगा में तांत्रिक क्रियाएं चलती हैं, साथ में वैदिक क्रियाएं चलती हैं. तो आप वैदिक क्रियास को फॉलो करें. तो क्या होता है वैदिक क्रियास में कि आप प्राणायाम में भी ऐसे नहीं आपको कोई भी रैंडम बंदा प्राणायाम बता रहा है, किसी को भी, सभी एज ग्रुप को वन जीन्स फिट ऑल नहीं होता प्राणायाम. आपको अपने बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है यमास, नियमास, आसनास, सारी चीज़ से, और आपको फिर काया चिकित्सा से अपने बॉडी को आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, प्राणायाम के लिए तैयार करना पड़ता है. जब आप कहीं जाके आप अपना प्राणायाम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कहाँ से होता है? संहिता कुंभ का. दिस नॉलेज इज़ नॉट माइन, दिस इज़ from my gurus, the 22 generations of gurus, starting with my guru Dr. A.L.V. Kumar, and then his other gurus, and ultimately the lineage goes on to Lord Shiva. So these are coming from the pool of consciousness. This is not my knowledge, and I'm just a messenger. I'm just trying to pass on a good thing to you. So when you have to exhale, जब आप exhale करें तो आपको बंद लगाना है. बंद में सबसे पहले मूल बंद, जो आपकी बंधास में क्या क्या आता है, आपकी अश्वनी मुद्रा, मूल बंद, अश्वनी मुद्रा, जिसमें आपको जेनिटल्स को स्क्वीज करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है. और लेडीज, यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट इट सो हार्ड दैट यू रीच ऑन द वर्ज ऑफ orgasm. Trust me, orgasm is very important for you. You have to have orgasms, and you will be independent. Like practicing this kriya regularly, you will be independent of men. You won't need men to get an orgasm, and there can be benefits of that, because orgasm is not just for indulgence. It is to release the lymphatic fluid and estrogen which is stored in your body due to excess fat. So it is very important. Do your research on it, practice it. When you are doing Sahita Kumbhaka, in each exhale you practice Vajroli. Similarly, men, आप भी
जब अपना आप प्राणायाम करते हैं तो आप जब ब्रीद आउट करें, ब्रीद आउट के दौरान मूल बंद, अश्वनी मुद्रा और मूल बंद आप स्क्वीज़ करें। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि देखिए ये बहुत गहरी क्रियाएं होती थी, इसमें आप अपने जेनिटल्स के साथ में घी को आप अंदर ले सकते हैं अपने जेनिटल से, तो वो बहुत एक आगे चल के एडवांस स्टेज आता है, आप सक इन कर पाएंगे, इतनी आपकी पावर आ जाएगी। मैन, आपको मैं बता रहा हूँ, इफ़ यू प्रैक्टिस दिस रेगुलरली यू विल नेवर इजैकुलेट, कभी भी डिस्चार्ज नहीं होगा। एंड जैसे मैंने बताया, ऑर्गेजम इज़ इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन बट नॉट इजैकुलेटिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मैन। So you will have such a tremendous power that you will never discharge even after 2 hours of sexual indulgence. You will be able to, you will get complete control on your veins, on your muscles, on your semen. Udharva reta, victorious, the victorious one. You will become the victorious one. You will gain complete control on your semen and you will never waste a drop of it when you understand its importance. So these are Vajroli and Amroli kriyas. You can start by practicing these kriyas with your pranayam. आप नाड़ी शोधन के नाम से आपने जो स्ट्रीट योगा टीचर से सुना होगा, सबको नाड़ी शोधन आता है। नाड़ी शोधन फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, नाड़ी शोधन कोई प्राणायाम नहीं होता, फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है। जब आप सही तक कुंभका कर रहे हैं, inhale from left and exhale from right, keep doing it, keep doing it, keep doing it, and the other side, inhale from right and exhale from left, again keep doing it, keep doing it, keep doing it। कब तक? जब तक आपकी नाड़ी शुद्ध नहीं हो जाती, आपकी इंगला, आपकी ईधा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी आपकी क्लियर नहीं हो जाती। नाड़ियाँ क्लियर होने का मतलब शरीर में कोई ब्लॉकेज नहीं रही। जब ब्लॉकेज नहीं रहती है तो आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ होता है। तो ये प्राणायाम के बहुत डीप आपके बेनिफिट्स होते हैं। और प्राणायाम करना कितना है? 20 बार। हमारे वेदास में क्या बताया गया है कि 2 महीने तक की प्राणायाम प्रैक्टिस, 20 बार सुबह, 20 बार दोपहर, 20 बार शाम और 20 बार मध्य रात्रि, ये आपको अपने प्राणायाम का अभ्यास करना है। 20 बार काफ़ी है, कोई 2-2 घंटे लगे रहने की ज़रूरत नहीं है, पर तरीके से। तो इनहेल करें, जब हवा को पूरा महसूस करें अपने, आपको मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, अपने गले में, फिर अपने सीने में, अपर लंग्स में, लोअर लंग्स में और जेनिटल्स में जाते हुए उसको फैलता हुआ सब हर चीज़ को महसूस करें। जब एक्सेल करें तो पूरा एक्सेल एक्सेल एक्सेल, नीचे से आप सिकुड़ता आ जाता है, जैसे बलून सिकुड़ता आता है, ऐसे वो सिकुड़ता आता है सब कुछ अपना। उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करें, अपने एनस को कॉन्ट्रैक्ट करें, नाभि को कॉन्ट्रैक्ट करें। यहाँ पे आप पहले मूल बंद लगाएं, उड़ियान बंद लगाएं, धीरे धीरे अपने पूरा रेजिडियम वैल्यूम अपने लंग्स में से निकाल दें। थोड़ा सा भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, किसी भी प्रकार के वेस्ट गैसेज आपके लंग्स में ना रहें जब आप एक्सेल कर रहे हैं। और अल्टीमेटली जब पूरा एक्सेल हो गया तो थोड़ा सा अपने एक्सेल के बाद में आप कुंभक, यानी कि आप रोकना, थोड़ी देर रोक सकते हैं। तो इनहेल पे ज़्यादा ना रोकें और बंद ना लगाएं, एक्सेल पे थोड़ा सा रोकें, इतना ना रोकें कि बाद में सांस लेने पे आपका ब्रीद इन पूरा हो ही ना पाए। तो ये थोड़ा ब्रीफ में आज मैं रखता हूँ, कभी आपको अच्छे से सिखाएंगे। तो अभी आप अमरोली और वज्रोली बोथ मैन एंड वेमेन इक्वली आपके लिए बेनिफिशियल है। आप इस्तेमाल करें, प्रैक्टिस करें। सिर्फ अपना बेसिक प्राणायाम आप स्टार्ट करें, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट एंड एक्सेल फ्रॉम राइट, इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए और 20 बार कीजिए, फिर 20 बार दूसरे साइड कीजिए, चारों टाइम 2 महीने तक आप अपने शरीर में डिफरेंसेस देखेंगे। शाकाहारी खाना खाइए, इजी थोड़ा थोड़ा भोजन लें, सुबह फल या दूध, फल वगैरह ज़्यादा लें, दोपहर को दही खट्टा खाना आप ले सकते हैं, दलिया वगैरह लीजिए, रात को केवल दूध का इस्तेमाल करें, थोड़ा टर्मरिक वगैरह के साथ में। जितना हल्का भोजन रात के लिए है उतना अच्छा है। तो बाकी अपने तासीर के हिसाब से आप अपने डॉक्टर से या अपने डाइटिशियन से आप कंसल्ट करके ये आप फॉलो करें। तो ये थोड़ी बातें। और एक्सेल पे वज्रोली यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द जेनिटल्स, उसका आप पूरा अभ्यास करें, उसके आपको बहुत ट्रेमेंडस बेनिफिट्स मिलेंगे, नॉट जस्ट इन योर सेक्स लाइफ बट अदर। ये बहुत सुपरफिशियल एस्पेक्ट होता है। जब आप डीपर जाते हैं तो बहुत आपको अननेसेसरी चीज़ें लगते हैं कि देर आर थिंग्स बियॉन्ड दैट व्हेन यू गो बियॉन्ड द बॉडी। जब आप टेंपल में जाते हैं तो बाहर आपको मूर्तियाँ दिखाई देते हैं, वो भिन्न भिन्न प्रकार के सेक्सुअल एक्ट्स में इंडल्ज कर रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि वाह, ये तो मंदिर है, मंदिर में कहाँ से सेक्सुअल एक्ट्स में इंडल्ज कर रहे हैं। बट वो आप जैसे जो लोग उनको देख के अपना ध्यान खो बैठते हैं, वो उन लोगों को बाहर ही रखने के लिए होता है कि यू डू नॉट डिजर्व टू गो टू द सैंक्टम सैंक्टेरियम ऑफ द टेम्पल। जब आप शरीर से बियॉन्ड जा चुके हैं, शरीर के पार जा चुके हैं, तो टेंपल के बीच में जाने का आप हक पाते हैं।
तो तब जब वो मूर्तियों को बताया गया कि जब आप अन्नमय कोशा के बियॉन्ड जाते हैं, इस खाल के लेयर जो है कैरोटिन लेयर, अगर आप इसको हटा दें, किसी बर्न्ट पेशेंट को देखिए कि आप उसको उसी तरह से किस करेंगे, कि आप उसके साथ उसी तरह से लव मेकिंग करेंगे? नहीं, कहाँ गया वो? सिर्फ स्किन की अट्रैक्शन है भाई, ब्यूटी इज स्किन डीप। तो ये आप ध्यान रखिए इस चीज़ का कि ये जो बाहर भी टेंपल के बाहर स्टैचूज़ होते हैं, ये बताने के लिए होते हैं कि स्टैचूज़ में मत अटको, शरीर में मत अटको, इसके बियॉन्ड जाओ। समझिए योगा बहुत कुछ है। योगा सिर्फ आपके वॉरियर पोज 1 2 3 एंड सीक्वेंस 1 सीक्वेंस 2 सीक्वेंस 3 इसके बियॉन्ड योगा है। तो अभी जो आपको योगा आपको देखने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, जो आजकल के योगी हैं और गुरु हैं, वो ऐसे हैं जैसे चूहे को किसी दुकान में से हल्दी का दाना मिल गया, हल्दी की डली मिल गई और वो समझता है कि मैं पंसारी हो गया। तो वो पंसारी नहीं है भैया, वो कंप्लीट योगी नहीं है। जैसे कि हमारे साधु संत बताते हैं, योगी वो होते थे, कृष्ण चंद्र जी होते थे, जो एक समय पे 16,000 रानियों के साथ में बात करते थे। योगी कौन होते थे? योगी हनुमान होते थे, जो मच्छर के रूप में सीता माता के सामने आते हैं और उनके प्रश्न करने पे कि क्या सभी ऐसे हैं, आप रावण से कैसे लड़ोगे, वो उनको विराट रूप भी दिखाते हैं। तो ये योग होता था, ये सारी योग की शक्तियाँ होती हैं और बहुत गहराई, बहुत इसमें अध्ययन, आप जीवनों कई जीवन इसमें लगा सकते हैं, वो भी कम पड़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा है आपने कुछ सीखा होगा। जय भोलेनाथ।